Good afternoon, everyone. August 1st to 17th every year is celebrated as the World Breastfeeding Week, and it is celebrated all over 120 countries across the globe. So, the main aim behind celebrating this is to promote basically breastfeeding and to improve the health of the baby. So, today, on the last day of the week, we are celebrating the World Breastfeeding Week, and we have Dr. Vinita Bansal with us, who will be giving a welcome note. Vinita is a PhD and RD. Very proudly, we can say that she is the first RD from Rajasthan. She is presently working as the Director of Foods and Nutrition in Mahatma Gandhi Medical University and Hospital. She is the course coordinator in Mahatma Gandhi for Clinical Nutrition and Dietetics. She is presently the treasurer of IDA Rajasthan Jaipur chapter and has many research papers published in national and international journals. Also, she has represented her work in the form of poster presentations in national and state level conferences. And she actively participates in the training and nutrition education programs for the students, staff, nursing staff, and ASHA workers. And she holds a work experience in this field for approximately more than 9 years now. So I welcome you, Vinita, and please go ahead. Vinita, you are on mute. Thank you so much, Namitadi. So, on behalf of Indian Dietetic Association Rajasthan Chapter, Network of Professional Rajasthan, Mahatma Gandhi Medical College and Hospital Jaipur, and Medipulse Hospital Jodhpur, I welcome our speaker Dr. Nimali Singh and our audience for today's event on World Breastfeeding Week. It's this this year's theme is Protect Breastfeeding, a shared responsibility. It's really a very important topic to make a strong and healthy future generation. So I welcome all of you. Over to you, Namitadi. Namita, you're muted. Namita, you're muted. So our speaker for the day is Dr. Nimali Singh. Actually, we fall very short of words when we try to introduce ma'am. But she is presently the Associate Professor, Department of Home Science, University of Rajasthan, Jaipur. She is the President and Convener, Indian Dietetic Association, Rajasthan Chapter. She is also the convener of NetProfan, Network of Professionals of Food and Nutrition, Rajasthan. She is involved in activities for Niti Aayog for Rajasthan. She is President of Home Science Alumni Association, University of Rajasthan. She is the recipient of several awards. She is the best. She has been awarded as best teacher from Avantika Educational Society. She has 7 PhDs to her credit, 50 papers published, 70 presented, and she has been actively involved in 9 projects with UNICEF, UGC, and DST. She is the resource person for more than 70 lectures and trainings. She was the former deputy director of University Infonet Center, member of Joint Review Mission nominated by Ministry of HRD, Government of India, for midday meal programs, and the state level consultant for UNICEF. We welcome you, ma'am, and we are looking forward to a very detailed and obviously informative session about breastfeeding. So, ma'am, please go ahead. Thank you, Namita, for the introduction. And the president word is wrong there, so you can correct it. It is convener Rajasthan chapter. Okay, so it's a convener Rajasthan chapter. So I will just let me know if you are able to hear me properly and if you are able to see my Yes, screen. ma'am. Yeah. You are audible. Good. Okay, Nice. so I am going to present my screen. Is it visible? Yes, ma'am. So you do let me know if it is moving or not. Okay. So Yes, this World Breastfeeding Week, as Namita told, that it has been started with 120 countries who are participating in it, and the agenda
for this year is Protect Breastfeeding, a Shared Responsibility. I'm going to talk about myths and facts of breastfeeding. So breastfeeding, as you know, that the first 1,000 days of the child, that is from conception to 1 year. I will give credit to my student Vanna Goyal for making the slides, and I'm going to use her slides which she has made for creating awareness. So first 1,000 days are the window of opportunity for us as a nation to prevent stunting. And you know why India is like on very high this thing on global hunger index, and also we have a lot of children dying of. I mean, we have number one country with children under 5 dying because of malnutrition and other problems associated with health, like weight gain and pneumonia and diarrhea and so on and so forth. So that is why breastfeeding is so important. That is why I'm trying to just say why first 1,000 days, just brief about 1,000 days. So 1,000 days include from conception till 2 years of age, and from conception to 9 months, the mother's body is preparing for the childbirth, for formation of the fetus with normal organs and with normal weight gain, and trying to bring a normal healthy child into the world. And then after that, during the pregnancy time only, uh, the base for breastfeeding is laid, because the mother gaining weight during her pregnancy is not only for the growth of the fetus but also for the further secretion of milk during lactation period, which can continue up to 2.5 years. Okay, so there are 4 ANCs of mother. 4 ANC means antenatal checkups, which include weight gain, checking up of weight gain, hemoglobin, blood pressure, and urine albumin. These are all important factors because it is going to have a bearing on the child formation during pregnancy. IFA, you know that India has maximum number of women. We are a vegetarian diet people. We all, most of us are eating vegetarian diet. There's nothing wrong with eating vegetarian diet, but we are the selection of food. हम क्या खा रहे हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ना. मैं दोनों ही भाषाओं का प्रयोग कर लेती हूँ इसमें. तो जो खा रही है माँ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि बच्चे की फॉर्मेशन कितनी होगी, उसका खुद का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा होगा. तो अगर वो खुद ही एनीमिक है तो उसका बच्चा नेचुरली लो बर्थ वेट बेबी होगा और उसकी जो ऑर्गन फॉर्मेशन हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो सके, वो जन्म से पहले ही स्टंटेड हो जाए. इसीलिए ये कहा गया है कि जो हमारी मदर्स हैं उनको हमें आईएफए सप्लीमेंटेशन देना ही देना है. आईएफए सप्लीमेंटेशन इसलिए देना है क्योंकि मैक्सिमम आई हैव कम अक्रॉस वुमेन विद 4 हीमोग्लोबिन. आई हैव कम अक्रॉस एजुकेटेड वुमेन विद 5 or 6 हीमोग्लोबिन. So you can imagine, I've come across women who are wife of doctors who are having 6 to 7 hemoglobin. So that is not only, there are so many complicated things about iron absorption. It is not only the type of diet that I'm eating, but also what type of system that I have. Okay, I may not be able to digest or absorb. सो उसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो कि हमें हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करती है कि हमारा जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो कैसा होगा. तो आईएफए सप्लीमेंटेशन ज़्यादातर 100 डेज के लिए तो मिनिमम हम एडवाइस करते ही हैं, और उसके अलावा उसको एडवाइस करते हैं न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए. उसका इम्यूनाइजेशन होना ज़रूरी है टेटनस टॉक्साइड का 3 months और 4 months पे, या जब भी लगे उसके 1 महीने तुरंत बाद. मतलब अगर 4th month में लगा है तो 5th month पे लगेगा, और 5th month में लिखा है तो 6th month में लगेगा. तो पहले के ज़माने में जब मैं प्रेग्नेंट थी 25 साल पहले, 28 साल पहले, तब हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर में टेटनस टॉक्साइड लगता था, लेकिन आजकल टेटनस टॉक्साइड जल्दी लगने लग गया है. इसके अलावा जो माँ और बच्चे दोनों की, जच्चा बच्चा की जो सेफ डिलीवरी है और जो बेबी को बचाना है, तो क्योंकि फर्स्ट डे जो है बच्चे के लिए वो बहुत ही डेंजरस होता है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के ऊपर स्ट्रेस किया गया है. हमारे देश में अभी भी बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे बच्चा घर पे ही पैदा हुआ होता है,
not only by choice but because of lack of facility. तो 2000 आई थिंक 12-13 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जब फाउंडेशन लिए करी थी, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया था कि हम इंस्टीट्यूशन डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया था, और हमने एक स्पेशल एम्बुलेंस भी स्टार्ट करी एनआरएचएम में उस समय, और एनआरएचएम इज नाउ नोन एज एनएचएम। तो उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के अंदर क्या अच्छा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में अगर मदर के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है चाइल्ड बर्थ में, तो वो हैंडल हो सकती है। जो बच्चे को हमें वार्म रखना है एज सून एज द बेबी इज बॉर्न, वो हम रख सकते हैं। बेबी को तुरंत ही माँ के पास लाके उसको इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, और कोलेस्ट्रम फीडिंग को भी हम इनिशिएट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अगर कहीं घर पे हुई है तो दादी के पास रहेगा, या जो भी घर की दूसरी औरत उसके पास रहेगा, उसके बाद उसको गुट्टी पिलाई जाएगी, चीनी का, गुड़ का, पानी शहद चटाया जाएगा, न जाने क्या क्या किया जाएगा, और बच्चा माँ के पास नहीं आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हमारी जो डिलीवरीज है वो इंस्टीट्यूशन में हो, और बाकी की जितनी भी केयर है बच्चे की, वो उसकी एक गाइडेंस मदर को मिल जाती है अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो। अब ये एक डायलॉग है ये अपने अमिताभ बच्चन जी का, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आया। So Vanna has taken a lot of filmy dialogues in her presentation so that to create interest, and I really liked her way, इसलिए मैंने भी ये रखी है स्लाइड की। अगर आपने माँ की दूध पिया है तो सामने क्या मतलब है? आई मीन दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट the children who are having mother's milk are stronger in terms of their immunity, in terms of their body composition, and if the breastfeeding is continued till 2 years or more, then the likelihood of child having a better quality of not only her or his physical status but also her emotional state. कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट पहला पीला गाढ़ा दूध जो है वो हमारे यहाँ पे पहले के टाइम में बहुत डिस्कार्ड किया जाता था। क्यों डिस्कार्ड किया जाता कि क्या इसके पीछे क्या मिथ थी कि अगर वो दूध तो बासी है ना, वो तो इतने महीनों से माँ, क्योंकि माँ का प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो 4th मंथ ऑनवर्ड्स बनने लग जाता है, और ब्रेस्ट का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे मिल्क सिक्रीशन भी कभी कभी थोड़ा सा ऐसे होता रहता है, मतलब अगर आप प्रेस करोगे ब्रेस्ट को तो थोड़ा सा दूध निकलेगा। तो इसके पीछे जो उसको फेंकने के पीछे जो कंसेप्ट था वो ये था कि वो जो दूध है कोलेस्ट्रम, जो पीला गाढ़ा दूध है, वो हमारा बासी दूध है, और इसलिए वो बासी दूध हमारी बॉडी के लिए, बच्चे की बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, इसलिए उसको डिस्कार्ड कर देता है। लेकिन विथ साइंस इट वाज नोन दैट एक्चुअली दैट कोलेस्ट्रम इज अमृत। अमृत क्यों है? क्योंकि एक तो वो बहुत ही डेंस है, मतलब गाढ़ा तो है ही, वो किस में डेंस है? न्यूट्रिएंट्स में डेंस है। उसके अंदर बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी है। जैसे कंडेंस मिल्क का डब्बा होता है ना, मिल्क मेड का डब्बा देखा होगा आपने, गाढ़ा होता है, वो थोड़ा सा पीला भी होता है, वो थोड़ा मीठा भी ज्यादा होता है। तो वो क्या है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है सब कंप्रेस कर दिए हैं, छोटा पैकेट बन गया है वो दूध का, जो कि कंप्रेस्ड है। ओके, सो इट इज वेरी वेरी डेंस इन न्यूट्रिएंट्स, एंड नॉट ओनली डेंस इन न्यूट्रिएंट्स, इट इज वेरी वेरी डेंस इन एंटीबॉडीज। जो भी माँ के शरीर में जितनी भी, क्या होता है जब हम बड़े होते हैं तो हमें सारी तरह की बीमारियां होती रहती है, एंड वी डेवलप इम्यूनिटी टुवर्ड्स दोस बॉडी। तो वो जितनी भी एंटीबॉडीज है मदर की बॉडी में, वो उस बच्चे के अंदर जा रही है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वैक्सीनेशन और फर्स्ट इम्यूनाइजेशन टू द चाइल्ड, because the mother's milk is carrying as many antibodies as she has in her blood. So it is very very important that colostrum is fed, and in India it is quite low, although the अभी हमारे क्या है, अभी हमारे आंकड़े ऐसे जगल हो रहे हैं ना, जिस चीज के लिए डांट पड़ जाती है वो उसी आंकड़े को 2-3 महीने में बढ़ाकर दिखाने लग जाता है। हम अभी भी फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमारा एक्चुअली टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि हमें इस परसेंटेज को ऊपर लेके जाना है। इसलिए नहीं कि हमने डांट खाई है तो हम उस आंकड़ों को
गलत सलत बता के, आप समझ नहीं सकते हैं कि कितने गलत आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं. So we have to understand that we have very, very low uh, uh, early initiation of breastfeeding and low colostrum feeding. अगर मैं ये भी एक डायलॉग इसने लिया, एक चुटकी सिंदूर वर्सेस एक घूंट कोलेस्ट्रम की कीमत. सो एक घूंट कोलेस्ट्रम की कीमत मैंने बता दी आपको कितनी इंपॉर्टेंट है. एक इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. तो ये फोटो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको दिखा देती हूँ. अर्ली, यू आर एबल टू सी माय स्लाइड्स? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible. So early initiation of breastfeeding का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों है, कब करानी चाहिए अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, कब इनिशिएट करनी चाहिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय वो माँ के शरीर से जैसे डिटैच होता है तो इट इज एडवाइज्ड दैट आइदर द बेबी इज केप्ट ऑन द एब्डोमेन ऑफ द मदर. तो उसको हम बच्चा खुद ही क्रॉल करके, ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं उसको, खुद ही क्रॉल करके ब्रेस्ट तक जाता है और खुद ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करता है. एक तो तरीका ये है, भी बहुत ही, उसके लिए अभी हमारा सिस्टम इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड बर्थ रेट है वो इतनी हाई है और हमारे पास जो अभी हमारा मेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत ही कम है. तो लेकिन जहाँ पे भी ऐसी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं इसको, या जहाँ पे डॉक्टर हमें प्रमोट करते हैं, वहाँ पे ब्रेस्ट क्रॉल इज द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट initiation of breastfeeding as soon as the baby is born. Sometimes the placenta also comes out later and the baby is kept on the abdomen of the mother covered with a warm sheet and then the baby crawls towards the mother's breast and खुद ही वो breast feed करने लगता है, उसको breast crawl कहते हैं. Initiation अगर breast crawl नहीं भी हो रहा है तो as soon as the baby and the mother are out of this thing or even in the labor room, the baby should be brought immediately to the mother. First one to hold the baby should be the mother of the baby. जो माँ है एक तो उसके अंदर ये वाली फीलिंग होनी चाहिए कि मेरा, वो थोड़े दिन में तो आ ही जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट टच है मदर का, that would, you know, all know that oxytocin is hormone for love. Okay, and oxytocin is also the hormone to release breast milk. Okay, flow of milk जो होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन. तो जैसे ही मदर और बेबी एक दूसरे को टच करेंगे दोनों में ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा. ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो बेबी का सक्लिंग रिफ्लेक्स है वो एकदम से एक्टिवेट होएगा और जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेगा. And if the mother tells the baby, हम जैसे कू करके बच्चे से बात करते हैं, इतना प्यारा बच्चा है मेरा बेबी है, I love you so much, any of those endearing statements we can make, and the baby mother may be in pain, but whenever as soon as she touches the baby her pain will also reduce, you see. So माँ जैसे बच्चे को उठाएगी, माँ उसको प्यार से अपने उसका गाल चूमे या सर चूमे या उसको अपने गोद में अपने आर्म में पकड़े, and the breast milk will start flowing and the baby will be able to suckle. This will not only prevent the feeding of prelacteals. Now prelacteals are feeds which are given to the baby. क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि हमें माँ को कष्ट नहीं देना है क्योंकि वो तो बहुत पेन से गुजरी है. तो बहुत सारे women हैं जो ये सोचती हैं कि चाइल्ड बर्थ इतना डिफिकल्ट है और ये है वो है. So you have to understand that child birth, every female species in this world, every mammal goes through this pain and we are no different. Why are we so different? So we have to bear that pain, and as soon as we touch the baby and if the oxytocin hormone level will go up, the pain will reduce. As soon as the mother starts breastfeeding the child, the pain will reduce further and the baby will be prevented. उसको
प्री लैक्टल फीड से बच जाएगा। जो हमारा पुराना सिस्टम था प्री लैक्टल फीड का 2 कारण थे। एक तो हमको उस गंदे दूध को फेंकना है, ऐसा मान्यता थी कि वो बासी दूध है उसको फेंकना है। दूसरी मान्यता ये थी कि माँ अभी इतनी कमजोर है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसकी 2-4 घंटे का उसको रेस्ट मिल जाए। तो एक हमारे यहाँ पे एक होती है प्रथा जिसमें कि बुआ जब आएगी वो माँ की तारों की छांव में कंघी करेगी, उसके बाद बच्चे को वो दूध पिलाएगी। तो अगर बच्चा रात में पैदा हो तो अगले दिन तक वेट करेगा वो तारों की छांव आने के लिए। So it is a very stupid kind of a tradition which was followed even during the first child that I had, and I had to wait to feed my child, and उसके with the result वो बच्चा दूसरे दिन तक 24 घंटे तक दूध नहीं पी पाया और वो दूसरी चीजें ही पीता रहा। So that is I was very young at that time also. I'm telling you this story because people who are educated also goes through all this nonsense. Have to, because you are not that strong to talk about it. So अभी सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया ना। women are more, एक तो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब हमारे बच्चे होते हैं। दूसरी बात, जब हमारे हम वी आर मोर outgoing now, we speak a lot, we speak our mind, and we are trained to speak our mind, and I think for these things we need to speak up. Okay, so pre-lactal feeds will be prevented, and pre-lactal feed की प्रॉब्लम क्या है कि जो भी फॉरेन बच्चे की बॉडी में, जो फॉरेन पार्टिकल बच्चे की बॉडी में जाएगा, वो दैट कैन कॉज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन और एनी एलर्जिक रिएक्शन, है ना, विच कैन कॉज बेबी टू रिकर्जिटेट, और उसमें लंग में जा सकता है और समथिंग पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए इट इज वेरी हार्मफुल दैट वी गिव एनी काइंड ऑफ गुट्टी टू द बच्चा। एंड कई लोग कहते हैं नहीं, सौंफ का पानी दे दो, डाबर जन्म घुट्टी, और वो न जाने कौन कौन सी घुट्टियां हैं। नहीं, कुछ नहीं देना है। क्या, जैसे मैंने बताया, माँ का दूध अमृत है, माँ का दूध ही देना है। बच्चा जैसे ही माँ की स्किन के कांटेक्ट में, अगर सर्दियों को देना तो और भी अच्छा है, वो बच्चा वार्म भी रहेगा, और फर्स्ट स्टूल जो है उसका मिकोनियम जिसको कहते हैं वो उसकी बॉडी से पास हो जाएगा। उसके अलावा क्या है कि जो मदर है उसके अंदर जो अपना यूट्रस रिलैप्स होता है ना, वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है। जैसे जैसे मदर ब्रेस्ट फीड करती है वैसे वैसे वो बच्चा वो जो यूट्रस है वो अपनी पोजीशन पे आता है। बेबी के लिए तो ये बता दिया, एंटीबॉडी है, डाइजेस्ट करने के लिए आसान है, एकदम टेलर मेड है फॉर द बेबीज न्यूट्रिशनल नीड्स, एंड इट विल कीप द बेबी वार्म। बेबी वार्म रखने का मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर्स ऑल्दो 35, 40, 45 हो जाते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में राजस्थान में स्पेशली 2-3 तक भी चले जाते हैं। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर है और जो मदर की वूम का टेम्परेचर है उसमें बहुत डिफरेंस है, इवन इन समर्स। ओके, 35 टेम्परेचर से 35 डिग्री से बच्चा किस में आ रहा है, ऑलमोस्ट 25-26 डिग्री पे। ठीक है, 28-29 में मान लोगे तो भी वो 7 डिग्री कम है। When the temperature is this low, 4 डिग्री लॉस ऑफ टेम्परेचर में बेबी को हाइपोथर्मिया हो जाता है, मतलब उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इतना कम हो जाता है दैट द बेबी में नॉट सर्वाइव। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर ऑफ दैट एज, जब हमें आते से हम गर्मियों में बच्चे को एसी में रखते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चा पूरे दिन रोता रहता है। बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि बेबी वार्म नहीं है, उसको गोद में उठाते ही चुप हो जाता है। गोद में उठाकर चुप होने का मतलब ये है that the baby is now comfortable and warm. So keeping the baby warm is that the temperature has to be maintained around 34-35 so that after a week's time the baby will adjust. Okay, but आप जाते ही उसको एसी में रख दोगे तो क्या होगा, वो बच्चा सोएगा नहीं, रोता रहेगा, और जब आप गोद में उठाओगे तब चुप हो जाएगा। दैट इज द रीजन वाई बेबी क्राई। और हम कहते हैं कि उसको गोद की आदत पड़ गई। गोद की आदत नहीं पड़ गई, बच्चा वार्म नहीं है। Okay, I was going in a plane, अभी थोड़े दिन की बात है, आई थिंक लास्ट ईयर 2019 में, एक छोटा सा बच्चा था, मस्ट बी 1 month old, और नेचुरली उसकी मम्मी उसके कपड़े उतारे जा रही थी, एंड आई सेड, उसको बताया मैंने क्या नाम है,
एयर होस्टेस को, मैंने कहा उसको बोलो कि अपने बच्चे को ढंग से लपेट के रखेगी। कहती नहीं उसको गर्मी लग रही है। शी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी, फिर मैंने कहा छोड़ो मैं क्या बात करूं उससे। तो ये जो हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार हो गए हैं बिल्कुल, हमको लगता है कि हमें गर्मी लग रही है तो बच्चे को भी गर्मी लगे। बच्चे को नहीं लग सकती गर्मी, बच्चे को गर्म टेम्परेचर चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबली सो सकते हैं। ओके, तुम देखना कभी बच्चे को एसी में रखोगे, पंखे में रखोगे तो नाक बंद हो जाएगी, फिर वो रोएगा क्योंकि सांस नहीं आएगी। और वो अपने अपनी नाक बंद हो जाती है तो तुम सोचो बच्चों की नोस्ट्रिल कितनी छोटी होती है, उसमें तब एयर पैसेज इतना छोटा होता है। ओके, मादा के लिए जो ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट है, हार्डनिंग ऑफ ब्रेस्ट विल बी लेसर, यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी जगह पे आ जाएगा, और जो मदर की हीलिंग है वो बेटर होगी। ठीक है, हम कह रहे हैं प्रोटेक्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग। दिस स्लाइड्स टेल दैट the father and the family needs to be with the mother to support her for breastfeeding. Why do we need her for breastfeeding, support breastfeeding? Because you know it is a full-time job bringing up a small child, है ना, क्योंकि वो जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्टफीड बच्चे होते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीड बच्चे होते हैं, वो एक तो उसको ऐसे बिल्कुल लूज मोशन होता है ना, एकदम ही वाटरी उसका स्टूल होता है। ओके, एंड जो जैसे ही उसका टॉप फीड होगा, आई थिंक somebody is not muted, can somebody check who is not muted? So if the baby is exclusively breastfed, then there is every time the baby drinks the milk, उसके बाद तुरंत ही उसको मोशन होएगा, फिर वो मदर उसको क्लीन करेगी, एंड देन तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है उसको करने में। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो मदर है उसको पूरा सपोर्ट दिया जाए। ओके, द चाइल्ड डज नॉट ओनली फीड इन द डे, इट ऑल्सो फीड्स इन द नाइट। So the cycle gets set in sometimes in 10 days, sometimes in 15 days, sometimes it takes a month कि बच्चा 2.5 घंटे में दूध पिएगा या 3 घंटे में दूध पिएगा। Important thing is that you have to feed the child from both the breast. Okay, एक breast पूरा खाली हो जाएगा, उसके बाद आपको दूसरे breast से उसको पिलाना है, अगर वो मांगे तो। नहीं तो एक ब्रेस्ट एम्प्टी हो गया, फिर नेक्स्ट फीड में दूसरा ब्रेस्ट। पहले वाला जो फर्स्ट मिल्क होता है वो होता है 4 मिल्क। 4 मिल्क में ज्यादा पानी होता है, और जो हाइंड मिल्क होता है उसमें ज्यादा प्रोटीन और फैट होता है। तो जो पेट भरना है, जो थर्स्ट है, वो तो पहले वाले दूध से मिटती है, और जो प्रोटीन और फैट वाला दूध है जो बाद में आता है, उससे उसका पेट भरता है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके, समटाइम्स द मदर फीड्स फ्रॉम बोथ द ब्रेस्ट, एंड वो पता चलता है बच्चा पानी पी पी के खत्म हो गया, और फिर वो वापस थोड़ी देर में भूखा हो जाएगा। ओके, so you have to first empty one breast and then go to the another breast. Exclusive breastfeeding क्यों करनी है? क्योंकि 6 बच्चा है, उसका दूध, माँ का जो दूध है वो टेलर मेड है ना, अपन फिटिंग का कपड़ा बनाते हैं ना, वैसे बच्चे का दूध है जो एकदम फिट है उसके ग्रोथ के लिए। ओके, अगर हम एनिमल मिल्क लेते हैं तो उसमें पानी मिलाना पड़ता है, उसको पतला करना पड़ता है। ब्रेस्ट मिल्क में ऑटोमेटिकली अपने आप ही 88% वाटर है, तो हमें उसके अंदर कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मदर इज होल्डिंग द चाइल्ड एंड दैट डेवलप्स एन इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द बेबी। कितनी देर में दूध पिलाना चाहिए, कब कब दूध पिलाना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि जब तक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, तो जब भी वो दूध मांगे, जो बच्चे का रोना होता है वो भी आप समझ जाओगे थोड़े दिन में कि वो किस तरह से दूध मांगता है ना। रोने का जोर जोर से रोता नहीं है वो, जब तक कि उसको अगर एक बार में ऐसे करेगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा, एंड वो मदर का फेस पे हाथ लगाएगा या ब्रेस्ट पे हाथ लगाएगा या ऐसे ना, अब पता चल जाता है आपको दैट बेबी इज आस्किंग फॉर मिल्क। एंड आई एम श्योर दैट हूएवर हैज फेड देयर चिल्ड्रन विल नो कि कैसे फीडिंग क्यूज होते हैं। शुरू में बेबी को ऑन डिमांड ही फीड करना है जब तक कि उसका टाइम सेट नहीं हो जाए, और अगर टाइम सेट भी हो जाए तो कई बार बच्चा एक्स्ट्रा फीड मांगता है क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही होती है। स्पेशली जो बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं, वो बच्चे शुरू में बहुत फ्रीक्वेंटली दूध पीते हैं,
I have seen it with my daughter. She was slightly preterm and for 1 month she used to feed very frequently, and 1 month में उसका weight एकदम normal baby की तरह है. उसका जो हमारे index होते हैं ना हमारे कि weight gain कितना हुआ, that became normal in 1 month's time. So sometimes the baby may be a little preterm or little underweight. That baby may demand feed more frequently. It is very good idea to feed the child, है ना. तो इसके डिमांड पे बच्चे को दूध पिलाना है ताकि उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए. ये मैंने बता दिया फर्स्ट एम्प्टी फर्स्ट ब्रेथ और इसकी बेबी की. हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको पता चले कि दूध ठीक से बच्चा पी रहा है कि नहीं. बहुत बड़ा मिथ है कि जो हमारा बेबी है वो उसका पेट नहीं भर रहा, इसलिए हम ऊपर का दूध देना शुरू कर देते हैं. अरे तो भाई जब बेबी को हम दूध पिला रहे हैं तो जो बच्चा सकल कर रहा है, दैट सकलिंग जो है वो हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन को इंक्रीज करता है. ठीक है, सकलिंग इंक्रीजेस आवर प्रोलैक्टिन हार्मोन सो दैट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीजेस. तो जितना ज्यादा बेबी सकल करेगा उतना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क बनेगा. सो आई यूजुअली जब गांव में जाते थे तो हम ये कहते थे कि भैया तुम गाय भैंस को कोई या कुत्ते के बच्चे को कोई गाय का दूध पिलाते हो या भैंस के बच्चे को तुम गाय का दूध पिलाते हो या बकरी के बच्चे को भैंस का दूध पिलाते हो. नहीं ना, वी आर ऑल मैमल्स. सो वी हैव 2-3 चीजें हैं. एक तो लैक्टेशन फेलियर की बात होती है और एक ये होता है कि बेबी को दूध नहीं आ रहा. माँ को दूध ही नहीं आ रहा है, माँ को दूध इतना कम आ रहा है कि बच्चे का पेट ही नहीं भरता है क्योंकि वो ज्यादा मांग रहा है. अरे ज्यादा इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसको जरूरत है, उसकी ग्रोथ हो रही है अभी. सो हु आर वी टू डिसाइड कि उसको कितना दूध पीना है, वो भूख उसको कितनी लग रही है वो बेबी डिसाइड करेगा. ओके, सो इफ यू आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड एंड इफ द बेबी इज डिमांडिंग मोर, दैट मीन्स उसकी एनर्जी डिमांड्स बढ़ी हुई है, उसको ज्यादा दूध पीने की जरूरत है. जितना ज्यादा बच्चा दूध पिएगा उतना ही ज्यादा उसका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन मदर में बढ़ेगा और जो लैक्टेशन है उसको वो इंक्रीज होगा. ठीक है, बेबी को कैसे दूध पिलाना है. बेबी को दूध पिलाना है, माँ अगर बैठ के दूध पिला सकती है तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया. उसका जो हाथ है वो बेबी के हेड के नीचे होना चाहिए. एक आर्म जो है उसको एल्बो से बेंड करेगी तो वो जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, उसका दूसरा हाथ से और दोनों हाथों से वो उसके हिप को सपोर्ट करेगी और जो पूरा बच्चा है वो पूरा सपोर्टेड है ऑल थ्रू. ओके, ऐसा नहीं लटका हुआ है कहीं से. नो, यू हैव टू होल्ड द बेबी प्रॉपर्ली. यू हैव टू सी दैट उसका नाक बंद नहीं हो रहा है, उसका मुंह पूरा खुला हुआ है और वो बड़े बड़े घूंट ले रहा है सकल करने के लिए ना. अगर वो सरफेस पे ही एरियोला पूरा उस बच्चे के मुंह में होना चाहिए, तो उसका जो मुंह है इस तरह से खुला होना चाहिए. मुंह खुला होना चाहिए मतलब जो अपर लिप है वो आउटवर्ड्स होना चाहिए, लोअर लिप भी आउटवर्ड्स होना चाहिए. एंड द बेबी शुड बी gulping very deeply. Okay, that will make sure that the baby is drawing milk very nicely. ठीक है, अगर वो उस तरह से ड्रॉ करेगा तो मदर का प्रोलैक्टिन हार्मोन को एक इनहेंस मिलेगा. अगर मदर बैठ नहीं पा रही है या थक गई है तो वो लिटाकर भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है. यू हैव सीन द पोजीशन. एंड बट हर हैंड शुड बी अंडर हिज और हर हिप and she should just make sure that the baby's nose is air passage जो है वो block तो नहीं हो रहा है. Okay? So these are the points that we need to check. ये मैंने आपको बता दिया. डीप सक्स होनी चाहिए. ये ऊपर कर दिया क्या? अगर हमें मिल्क मदर को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या वो काम पे जाती है, उसको माँ को दूध पिलाना चाहती है तो वो क्या करे. उसको वो अपने दूध को एक्सप्रेस करके और किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकती है फॉर 4 to 5 to 6 आवर्स. इनफैक्ट 24 आवर्स तक भी रेफ्रिजरेट कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को. इसमें दिखा रहे हैं कि वो अपने हाथ से ही ब्रेस्ट मिल्क निकाल रही है. ओके, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप
को हाथ से निकालना है। आजकल ब्रेस्ट पम्प्स आते हैं, बहुत इजीली हम ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के रख सकते हैं और बेबी को फीड कर सकते हैं। अगर माँ को तकलीफ हो रही है फीडिंग में, तो हमको मदर क्या होता है, थक भी जाती है थोड़ा सा. So what we need to do is, especially in the initial 1 month, it's if it is a new mother, then she has more थकान की ज़्यादा चांसेस है. तो उसकी मसाज को थोड़ा सा बैक को थोड़ा मसाज करिए. उसके जो अपर लिम्स हैं उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करें. अगर ब्रेस्ट इनगॉर्ज्ड है तो आर्म का जो मूवमेंट है ना, जो एक्सिला है हमारा, जो आर्म पिट है, अगर थोड़ा सा मसाज करें. Hot shower or fomentation also helps the mother to relax. And बेबी को प्यार से जब भी वो होल्ड करेगी, वो ब्रेस्ट मिल्क अपने आप ही फ्लो करने लगेगा. सो दैट विल ऑलवेज रिलीज मिल्क और वो जितनी भी इंगॉर्जमेंट है वो ठीक हो जाएगी. अगर ब्रेस्ट ज्यादा इंगॉर्ज्ड है, कई बार मदर का और बेबी का थोड़ा सा ज्यादा टाइम का गैप हो जाता है दूध पिलाने में. बच्चा सोता रह जाता है 6-7-8 घंटे, और एक गो में वो कई बार 7-8 घंटे भी सो लेता है और मदर का दूध पीता नहीं है, तो मदर का ब्रेस्ट जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है. So what she can do is she can first wash her hands with soap and water and then gently massage her breast. Gently massage her breast, maybe with some warm oil or something like that. ऑयल भी वैसे तो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो बेबी के उसमें भी जाएगा, और अगर कर रहे हैं तो फिर उसको गर्म तौले से पोंछ करके फिर हम ब्रेस्ट फीड करेंगे. ब्रेस्ट को हमेशा हाथ में पकड़ के सपोर्ट देके, और देन दैट मसाज शुड बी डन अराउंड द एरियोला एंड इन द एक्सिला आल्सो. फिर दूध को बाहर निकालने के लिए आप उसको दोनों हाथ से खींच के और ब्रेस्ट को मसाज करके आगे की तरफ कर सकते हैं. एंड देन जेंटली यू कैन एक्सप्रेस मिल्क बाय होल्डिंग द ब्रेस्ट. तो ये एनगॉर्जमेंट में भी काम होता है, और कभी कभी हमको जब ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करना होता है तब भी हम काम कर सकते हैं. सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट वी हैव अ वेरी बिग. कब तक पिलाना चाहिए ये बताना चाहूंगी कि 6 महीने तक माँ का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इवन नो वाटर, नो जन्म घुट्टी, नथिंग. अगर आपको लगता है कि बच्चे को प्यास लग रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है. दूध पिएगा तो उसका सब प्यास बुझ जाएगी. एज आई टोल्ड यू कि 4 मिल्क इज टोटली वाटर, इज मोर ऑफ वाटर. 6 महीने तक दूध पिलाने के बाद 6 महीने पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब ये नहीं है कतई कि हमें ब्रेस्ट मिल्क से एनिमल मिल्क पे जाना. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब ये है कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ हमें ऊपर का कोई आहार देना है, क्योंकि उसकी एनर्जी डिमांड्स बढ़ गई है. उसके अंदर हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, पल्सेस, अगर मीट खाती है फैमिली तो एग, फिश, पोल्ट्री, व्हाटएवर. वी हैव टू इंट्रोड्यूस दैट along with ब्रेस्ट, मतलब कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, और उसके साथ साथ दूसरी चीजें ऐड करनी है. जो बेबी का पैसेज है वो बहुत छोटा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे अपन कभी किसी और दिन करेंगे. सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज नॉट रिमूविंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग एनिमल मिल्क एट ऑल, है ना. ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है till 2 years or more, as long as the baby wants to feed or as long as the mother wants to feed. तो जैसे जैसे हम आहार बढ़ाएंगे, 2 या 3 कटोरी, जैसे पहले हमने आधी कटोरी दी या 2 चम्मच दी, फिर धीरे धीरे 10-15 दिन में हम 1 कटोरी पे आए, फिर उसके बाद 10-15 दिन में हम 2 कटोरी पे आए. इस तरह से हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, और धीरे धीरे बढ़ाने के बाद फिर हमें ब्रेस्ट मिल्क को, हो सकता है कि मदर जब बच्चे को सुलाना हो तभी पिला रही हो एट द एंड ऑफ 1 year और 2 years, और 2 साल तक बच्चे को हम रात में भी दूध पिला सकते हैं, और जितनी बार चाहें यू कैन फीड द बेबी, स्पेशली व्हेन द बेबी इज नॉट वेल. तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीड करें. जितना ज़्यादा लंबा ब्रेस्ट फीड करेंगे हम बच्चे को, उतनी ही उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और उतना ही बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन जल्दी नहीं होगा. About the theme, I think we have a shared responsibility not only in terms of
mother-in-law supporting the new mother, but also the husband and other members of the family. जब भी बच्चा रो रहा है दूध के लिए, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मदर को ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके. Not only in our household, but in our workplace, in travel, in wherever, for our maids, for anybody who is there, it is very important. It's our duty that we allow that mother to breastfeed the child. Okay, so way forward क्या है कि हम engage करें community को, youth को educate करें कि उनको ये message pass करना है. ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिससे कि हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें ब्रेस्ट फीडिंग का. इवैल्यूएट करें कि हम, मैंने कहा अभी 24% है, तो हम सही सीरियस इवैल्यूएशन करें कि हम कहाँ हैं एज अ कंट्री. इनकरेज करें विमेन और फैमिली को, और एम्पावर करें विमेन को इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस. ऑलवेज अप्रिशिएट द वुमन हु इज ट्राइंग टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड. एक पोएम मैं हमेशा बोलती हूँ. दिस इज फ्रॉम माय स्टूडेंट सादिया's thesis, and she has actually searched for this poem, that we are guilty of many errors and many faults, but in the foundation of life, many of things can wait, the child cannot. Right now is the time his bones are being formed, his blood is being made, and his senses are being developed. To him we cannot answer tomorrow, because his name is today. This is by Gabriela Mistral, 1948. And this is very, very important for our country, that we have to actually pay attention to our young children, infants and young children. And also to this forum, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अभी नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे. Thank you so much. So I hope I have not made you sleep. No, ma'am. Thank you, ma'am, for such an informational and wonderful talk. If any of you have any questions, you can write in the chat box and we can take them up. And I would now request Vandana to ask some of the common questions which generally all of us have in mind. So over to you, Vandana. Thank you, Namita Di. Ma'am, it was a wonderful presentation. You have covered each and every point. But in this time, when the pandemic is there, in this COVID era, there are certain questions which are very prevalent. So I want to know that a lot of mothers are confused that if they are suffering from COVID infections, can they breastfeed their babies? Yes, they can breastfeed the baby, because you see, most of the mothers will have antibodies in their blood. As I said, that जो भी माँ किसी भी infection से गुजरती है, उसकी body में उसकी antibodies है. Okay, so what she can do is she can always cover her face with a double mask, है ना, और चाहे तो face shield भी लगा ले, पर mask लगाना जरूरी है जो यहाँ तक fit होता कि नीचे से कुछ ना जाए. She has to maybe wear some gear, ऊपर से कुछ ऐसे नए स्टरलाइज कपड़े हो, जैसे कि प्रेस करे हो जो रिसेंटली, ऐसी कोई रोब पहन सकती है. She has to definitely sanitize, wash her hands properly and dry them, and then she needs to pick up the baby and feed the child. So mothers can breastfeed the baby because she has the immunity and she is going to pass that immunity. And अगर लग रहा है कि माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है, उस केस में जैसे मैंने कहा ब्रेस्ट पंप से हम ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. माँ को बच्चा देने के बजाय हम उसको ब्रेस्ट फीड वैसे कर सकते हैं. So it is either ways we can breastfeed the child. 1 second, Vandana, sorry to interrupt you. Actually, I would like to welcome Dr. Kanika ma'am also, who is immediate past convener of IDA Rajasthan chapter and associate professor in University of Rajasthan, Jaipur. Welcome to you, Kanika ma'am. Hello, Vinita. Hello, Nimali. Hi, Kanika Di. Thanks for joining me, Kanika Di. Richa, तुम muted हो. Hi. नहीं. Hello, everybody. नहीं. Welcome you, ma'am, and I think we should carry on our Q&A session.
ma'am, how should a mother ensure that she is getting sufficient milk? Because at times they're very much confused. Ki I don't produce enough milk, and that is the reason they try to give the top feed to the baby. So how can they ensure? तो ये जितना भी कंफ्यूजन है ना, पहले 1-2 महीने में ही चलता है बच्चे के, है ना, फर्स्ट 2 मंथ्स, फर्स्ट 15 to 20 डेज में ही बच्चा सेट हो जाता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली द चाइल्ड इज आस्किंग। तो जैसे मैं बता रही थी कि अगर थोड़ा सा भी अंडरवेट बच्चा है या प्री टर्म बच्चा है, तो वो बच्चा जो है वो ज्यादा दूध पिएगा, है ना, तो बार बार दूध पिएगा, तो बार बार दूध पी रहा है तो माँ को लग रहा है कि उसका पेट नहीं भर रहा है, लेकिन भाई उसकी बॉडी डिमांड कर रही है। सो एक तो माँ को ये समझाने की जरूरत है कि जितना ज्यादा बच्चा सकल करेगा मिल्क, उतना ही ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक, तो दिस हैज टू बी काउंसल्ड। अभी एक मैंने देखी थी एडवर्टाइजमेंट जिसमें न्यूट्रिशन काउंसलर्स को लगाने की आई है, 40-45 कितनी आई है, प्रीति ने डाला था। That is a very very good thing that the government is thinking about nutrition counselors, and nutrition counselors को भी बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन के भी बहुत सारी ये वाली बातें नहीं पता है, I'm sorry to say, because we have to educate. Infant and young child nutrition is totally one field which is very very specialized. जैसे हम हेपेटाइटिस के लिए या लिवर डिजीज के लिए या किडनी डिजीज के लिए न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वैसे ही हमें इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि क्या है, इट इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड कि हमें किस कंसिस्टेंसी में खिलाना है, किस टेम्परेचर पे खिलाना है, ये सारी चीजें हमें समझानी पड़ेंगी। माँ को क्या खिलाना है, बच्चे को क्या खिलाना है, देयर दोस टाइप ऑफ मिथ्स आल्सो कि माँ ये खा लेगी तो बच्चे को डायरिया हो जाएगा और वो खा लेगी तो बच्चे को डायरिया हो जाएगा। So that is also there. So I think we need to educate, and it is mother should know that बच्चे को, कई बार वो मदर को ये लगता है कि बच्चा सो गया रात को, तो भूखा ही सो गया वो, ऐसा नहीं है, उठेगा पी लेगा, इसलिए no worries. So the mother should rest assured that as long as she is breastfeeding the child exclusively and she is well fed herself, तो कोई दिक्कत नहीं है। And there is one more very common question, which is about which the mothers are concerned, which is about the size of the breast. Does the size of the breast have to do anything with the amount of milk that she can produce? No, because she is not storing milk, she is producing milk. ऐसा कोई स्टोरेज ऑर्गन नहीं है हमारा ब्रेस्ट जहाँ पे कि मिल्क स्टोर होता है, नो, इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड, so the size of breast doesn't matter at all. Okay. For how long is colostrum secreted? And initially, when a mother produces just few drops, is that sufficient for the baby? So it's not a few drops, but a few ml, you can say, a few ml of colostrum. जैसे मैंने कहा कि condensed milk है, जैसे condensed milk है ना, उसमें सारा न्यूट्रिएंट का छोटा पैकेट हो गया, ठीक है। आजकल हमारी जेल्स आने लगे हैं ना बाजार में, it's like that. It's very condensed form of nutrition packet which is there, and I think it is up to 5 days, that 5 to 7 days, that colostrum in little amount. तो पहले वाला जो कोलेस्ट्रम होता है वो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है 2-3 दिन तक का, उसके बाद थोड़ा सा और लाइट हो जाता है, तो 5 डेज तक कोलेस्ट्रम सिक्रीट हो रहा है, लेकिन माँ को तो पहले दिन से ही पिलाना है। Okay. Is it compulsory for the mothers to drink at least half a liter of milk every day when she is breastfeeding the baby? It depends on what type of diet she is having. Half a kg milk is not any criteria of deciding whether she's having sufficient amount of so sufficient amount of energy, protein, calcium. These are the 3 things that we are looking for, and fat for formation of milk. So if she's having other sources of protein and calcium, then it is all right. अभी तक तो ज्यादातर माएँ जो हैं वो ट्रेडिशनल सिस्टम में जो चल रही हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो बहुत हेल्दी है, सो वी आर गिवन दोज नट्स आल्सो इन फॉर्म ऑफ लड्डू एंड मेडिसिन, और ये सारी जितने भी चीजें हम दे रहे हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए,
एक्चुअली ये बढ़ा रहा है कि उसमें एनर्जी, प्रोटीन, फैट हमारा इंक्रीज हो रहा है। मिल्क में क्योंकि कैल्शियम भी है तो इसलिए इट इज एडवाइजेबल दैट शी कैन हैव अ हायर डोज ऑफ मिल्क, बट इफ शी डजंट लाइक एंड शी कैन हैव अदर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम आल्सो, so no compulsion as such, Is as there and what woman wants. I mean, sorry. पनीर खा सकती है और कोई दूसरी चीजें खा सकती है, नो इशू। Is there certain food that mother should avoid while she's breastfeeding the baby, like chana dal, urad dal, something like that? So it is not only advisable for the mother, for the child's health, but it is also advisable for her own health, that she should have very foods which are easily digestible. So some people already have the problem of gas and constipation and certain things which are aggravated by certain foods. So if she already has a problem, then it is advisable she doesn't take. अदरवाइज मैं तो क्या कहती हूँ, ट्राई करना पड़ेगा आपको। बच्चे के साथ कई चीजें बच्चे को सूट नहीं करती है तो मत खाओ ना, दूसरा खा लो, बट देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर देयर। ओके, सो इट इज ओके टू हैव एवरीथिंग, बट व्हाटएवर द मदर इज इजीली एबल टू डाइजेस्ट एंड द बेबीज इज आल्सो इजी। तो जो सौंफ का पानी गुट्टी वट्टी पीने को कहते हैं ना, मैं तो कहती हूँ माँ को खिला दो ना, तुम सौंफ कितनी खिलानी है, जो खिला दो, मोटी वाली सौंफ खिला दो उसको, वो भी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। Yes, ma'am. The next question was about that only. That not regularly but occasionally can the child be given ghutti or ajwain ka water when he is constipated for like 6 to 7 days? नो, इट विल नॉट हेल्प ना। उसके कॉन्स्टिपेशन से अजवाइन के पानी का और उसके पानी का क्या मतलब है? कोई नहीं। तुम्हें लग रहा है कि माँ को, तुम्हें जो भी खिलाना है माँ को खिलाओ। अजवाइन तो वैसे ही मदर को खिलाई जाती है फर्स्ट 40 डेज में। इफ यू नो, आई डोंट नो सब क्या बनती है कि नहीं, हमारे यहाँ तो अजवाइन, गुड़ और जो ड्राई फ्रूट्स और गोंद वो बनती है। It is a type of a desi medicine which not only cleanses the uterus and purifies the blood, as it is said so, but it is also going to improve। भाई अजवाइन तो हमें मालूम ही है, हमारी इसकी मेडिसिन है ही गैस की और स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। अजवाइन तो नोन है, प्रूवन है, तो उसको खाने में माँ का और बच्चे का दोनों का पेट अच्छा रहेगा उससे। और बच्चा तो मैंने तो बताया। हाँ बेटा बोलो। Also, ajwain has this compound called galactobol, which helps in the contraction of the uterus. So that's why it is, advised that the mother has ajwain for the first 40 days, so that the uterus can contract and get back to shape. अगर कुछ अंदर हो, उसके कोई क्लॉट हो या कुछ हो, that and everything can comes out. Everything can come out of it. Ma'am, there is a question by Lata Mishra ji. It is, what is the role of mother milk bank, human milk bank? Human milk bank का देखो, it's a very good question and it is very necessary also that you know that lot of children lose their mothers during childbirth. Not only during childbirth but later also due to postpartum complications. So that is why the mother's milk bank is made, and sometimes the mother may have depression, postpartum depression, or any disease for which she may not be able to feed the baby. यूजुअली और ऐसी कोई डिजीजेस तो यूजुअली नहीं है जिसमें मना करें, लेकिन समटाइम्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन में मदर नहीं फीड कर पाती है, बच्चे को उठाना भी नहीं चाहती है वो, या कुछ इस तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम ह्यूमंस में साइकोलॉजी के कारण जरूर हमारे थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज फिजिकली हेल्दी मदर कैन। सो मदर्स बैंक इज अ वेरी गुड way of feeding children who have lost their mothers, or if the mothers are not able to feed for any kind of reason. One last question. Can the baby be given water if it is like extremely hot and if the baby is just 3 months old or 4 months old? No, जरूरत नहीं है। माँ का दूध पिला रहे हो तो जरूरत है ही नहीं, बच्चे को प्यास ही नहीं लगेगी, चिंता ही मत करो उस चीज की। Now, there is one more question by an audience, Dibriti Bhattacharya ji, which is, can we people opt for goat's milk
when the mother is not producing milk, it is okay, better than cow's milk or formula? I don't think so. You can go for the banks that are there, lactation banks are there. So I think I am not for animal milk. पर अगर पिलाना ही है तो कुछ भी दूध पिलाओ, लेकिन फिर उसको डाइल्यूट मत करो, उसमें पानी मत डालो, क्योंकि पानी से और ज़्यादा इन्फेक्शन जाएगा. तो इसलिए बेटर है कि फिर आप होल मिल्क की कोई सा भी पिला दो जो भी अवेलेबल है. इफ इट इज़ अवेलेबल, वॉट एवर इज अवेलेबल, यू कैन feed the child with that milk rather than going for formula. I'm against the formula milk. Actually, it has been banned also by our government. Why not formula milk? Because it has already got so many preservatives. Okay. And you know that cancer and other NCDs have risen in the past few decades, mostly because of packaged foods. So we have to understand that all the preservatives, all the chemicals, so any food that is not natural, we must not be feeding the Yes, baby. high fructose corn syrup. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Any other questions? Does anyone have any other question? You can please post in the chat box. Over to you, Namita Di. Yeah, thank you, ma'am, and thank you, Vanna, for such a wonderful question and answer session. It was quite insightful. Also, the feedback form has been, the link for the feedback form has been posted in the chat box. So all of you can fill and get your certificate. And we have one more question from Sonika Shukla. Which foods or herbs can help increase milk? Foods may, the traditional system says that dalia and क्या कहते हैं, कौन सी दाल होती है रेड वाली, रेड वाली कौन सी दाल होती है? मसूर की दाल. मसूर की दाल, दलिया, दूध, गुड़, ये सारी चीजें हैं जो कि अजवाइन, ये सब चीजें जो हैं ये सब दूध बनाने में मदद करती हैं. और हर्ब्स तो मुझे सच नहीं पता, हर्ब्स कोई हैं जो बनाती हूँ, मिल्क प्रोडक्शन करती हूँ. मेरे को तो सबसे साइंटिफिकली जो मैं जानती हूँ, केवल और केवल जो माँ का वो है सकलिंग रिस्पॉन्स है बच्चे का, वो ही दूध बनाने में मदद करता है ज़्यादा. तो अगर उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसके पास, तो वो मदर जो है और जो बच्चा सकल कर रहा है, तो वो दूध बनेगा उसका. Also, there is one more question from Lata Mishra. Is it HIV plus mothers के लिए कोई restriction है for breastfeeding? No. There is a medicine, and I'm not remembering the name of the medicine, but if the mother is taking that medicine, the mother can feed the child. So there are no restrictions in HIV also. Okay, so we have, I think, no more questions. So I would now request Dr. Richa Chaturvedi. She is Assistant Professor at Kanodia Mahila Mahavidyalaya and Secretary IDA and Metrofan Rajasthan Chapter. I invite you, Richa Di, for a vote of thanks. Thank you, Namita. So, gratitude is one of the most greatest human virtues, and I'm very thankful for our associations to organize this event today, because this awareness is very much needed in the present times, as India is still struggling to keep their babies and mothers safe. So I thank our speaker for the day, Dr. Nimali Singh, who is our mentor also, and she has always been guiding us to do some good work around. So I thank you, ma'am, for such a wonderful session. I think many myths have been broken for people, especially for the nursing staff of the hospitals who are with us today, and students who might be getting this knowledge for the very first time from you. So this has been really a wonderful session. I also thank Dr. Vinita Gupta and
from Medipulse, Jodhpur. I am not actually aware of the name who is the person concerned there, but I thank Debati. So both of them, because they have made this session possible today. I thank Namita Pangaria for such a wonderful moderation. I thank Vinita for being there and everybody else who has been there. I can see few names whom I know very well, and there are many others whom I'm not so very well acquainted with. But thank you all for being there today, and we hope to see you more on such platforms and for some great learning ahead. Thank you everyone for being there today. Thank you all. Thank you, Richa, for always being there and always doing the background work. Thank you, Vandana, Preeti, Namita. I thank you all for being there, Kanikadi, and all Rani, Shalja, all the students that are here, and all the teachers who are here. I hope that we take this message forward so that we can like educate more and more people about breastfeeding importance. Thank you. So shall we end the meeting? Yes, I think so.